Okay. So in previous classes, we have studied about different type of signals as well as different type of systems and operation on the systems. And after that, we have studied about convolution and your convolution sum. And now today we will discuss about correlation. Okay, so very carefully concentrate on the term correlation. That means same signal, co, that means in a same type of signal, correlation. Suppose I am going to relate any two students. Okay, so first of all, the criteria is the two students must have the same property. Okay. एक मिनट. So the two students must have same property or they can be correlate with each other. Now I can compare. Correlation is nothing but comparison between two same type signals. Maybe the two same time signal, the signals may be the same signal or different signal, but they must have the same properties. So suppose, so in case of signal, what will happen? Correlation correlation is nothing but comparison between two signals having same properties. So that's why we can correlate them. Okay. So in case of correlation, we need two type of signal. If the signals are different signal, then we don't have anything to bother because they will give you x of n and they will give you y of n, or instead of y of n sometimes they will give you h of n, whatever it may be. But I have two signals and those two signals will consist same type of properties, so we can compare this. So now in case of signal processing, if two signals are different, okay, then this is known as cross correlation. That means correlation is classified into two categories. Correlation is classified into two categories. That is cross correlation and second one is auto correlation. বলবে কিছু? বারোটা পঞ্চাশ. So cross correlation means when two types of signals are different but having same properties. Cross correlation. So cross correlation we don't need to bother much more. But in case of auto correlation, that means same signal is compared with that signal. ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि तुम अपने से खुद को कंपेयर करो, तो तुम कैसे कंपेयर करोगे? कि तुम अभी जो 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, यहाँ का जो परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली इन परफॉर्मेंस बेसिस, यहाँ का जो परफॉर्मेंस तुम्हारा प्रीवियस सेमेस्टर में तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था इसके ऊपर डिपेंड करके. सो ऑटो कोरिलेशन ऑलवेज कंसीडर द सिग्नल इन प्रेजेंट फेज एंड द सिग्नल इन द पास्ट फेज. दैट मीन्स डिले, एक स्टेप डिले में, एक साल डिले में तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था या एक सेमिस्टर डिले में तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था, इसी के ऊपर डिपेंड करके सेम सिग्नल को हम कंपेयर करते हैं. सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दैट इज क्रॉस कोरिलेशन एंड ऑटो कोरिलेशन. ठीक है, समटाइम्स दे आर आस्किंग अबाउट find the difference between cross correlation and auto correlation. So cross correlation means I have two signals, two different signals. That is, one is x of n, whatever it is given, and another is y of n, or in the form of h of n, that is also will be given in the question. So you have to find out the cross correlation. But in case of auto correlation, you have to
find the comparison, or you have to compare the signal with the signal itself. First signal you have to take the present situation, and the second signal you have to calculate on the basis of past signal, that is एक डिले या 2 यूनिट डिले और m यूनिट डिले. ओके, सो कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन, पहले हम लोग जाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन कैसे होता है. कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन, इसको देखते हैं पहले कैसा होता है, उसके बाद क्रॉस और ऑटो में हम लोग उसको फेच करेंगे. पहले इन जनरल कैसे होता है. सो लेट इट बी, first one is two input signals. Okay, that is one is x of n, let y of n are the two signals. Second step, यहां पे तुम्हारा सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेम things whatever you have done in convolution, same thing you have to calculate. That means मुझे क्या करना पड़ेगा, y of second signal y of n minus l, ये हमको निकालना पड़ेगा. y of n minus n I have to find out, where l is the lag, कि वो 1 यूनिट डिले होगा कि 2 यूनिट डिले होगा, that is depend upon the signal. Okay, next is you have to simple find out y of minus l. ठीक है, next I have to find out y of minus l. Fourth one is you have to find out x of l, and fifth one is now correlation, that is given by this gamma symbol, and x and y two different signals, so within the l sequence, so x of l convolution of y of minus l. This is the main process of convolute between of finding correlation between two signals. So क्रॉस कोरिलेशन, सपोज आई एम सेइंग के मैं एक सिग्नल दे रहा हूं, ठीक है, व्हाट एवर मे बी सिग्नल, सपोज नाउ मैं इसको क्रॉस कोरिलेशन में लेके जाऊंगा. ठीक है, ये 5 स्टेप यू हैव टू फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल x of n and y of n will be given, you have to find out the delay signal. Next you have to represent the entire y of n in terms of minus n, that is minus l, that is y of n को y of l में कन्वर्ट करो, फिर उसको इन्वर्ट कर लो, that is उसका इन्वर्ट सिग्नल निकाल लो माइनस एल, और x of n को x of l में कन्वर्ट करो. देन व्हाट एवर यू विल गिव, ये दोनों का कन्वोल्यूशन सम निकालो, व्हाट एवर यू विल गेट, दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन xn and yn. सो नाउ first A, that is cross correlation. Cross correlation. So cross correlation अब देखेंगे. ठीक है, cross correlation, let x of n first signal, x of n, okay, and second signal y of n. Okay, now according to the formula xy of l equal to summation of, since convolution करना पड़ेगा तो summation of n equal to minus infinity to plus infinity, x of n, k के बदले n पुट करो, x of n y of n minus l. ठीक है, ठीक जैसे हम लोग कॉन्वोल्यूशन में लेते थे, कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के, ये लिखते थे. तो यहां पे देखो k के बदले हम लोग l पुट कर रहे हैं,
और यहाँ पे सिंस k का वैल्यू यहाँ पे n, सो यहाँ पे माइनस ले रहे हैं कोरिलेशन, सो यहाँ पे n माइनस एल। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत अच्छे से याद रखना कि यही डिफरेंस है तुम्हारा कन्वोल्यूशन फॉर्मूला और कोरिलेशन फॉर्मूला निकालने में। यही एक अंतर है, वहां पे l माइनस एन लिखोगे, यहाँ पे n माइनस एल, यहाँ पे n माइनस के लिखोगे, यहाँ पे n माइनस एल। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट होगा k और यहाँ n होगा। सो नाउ आई हैव टू डू दिस अकॉर्डिंग टू द formula. Okay, so now let when L is the lagging parameter, lagging parameter, ठीक है, जहां पे L का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट 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 अप टू चलता रहेगा। ठीक है, अप टू इंफिनिटी। नाउ मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूं। एक एग्जांपल ले ले रहा हूं। ठीक है, x of n equal to 1 minus 1 1 2 एंड y यहाँ पे दिया हुआ है y of n इक्वल टू 1 2 1 माइनस 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। नाउ इसको मैं कैसे करूंगा, एक्चुअली ये तुम लोगों को करना है, मुझे रिजल्ट नेक्स्ट क्लास में शो करना है। ठीक है, 100 मैं सिर्फ प्रोसेस बता दे रहा हूँ, तब तुम्हारा कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन दोनों में तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको y ऑफ l में कन्वर्ट करूंगा। मुझे स्टार्टिंग एंडिंग कुछ जरूरत नहीं है, वो कन्वोल्यूशन में जरूरत है, यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग का कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, पहले मैं ले लूंगा x ऑफ l दैट इज ऑल्सो 1 माइनस 1 1 2 y ऑफ l that is also 1 2 1 minus 1। नाउ क्या करना पड़ेगा, इसको मैं y ऑफ माइनस एल लूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं दिया है, मतलब यहां से चालू होगा, तो यही सिग्नल को मैं फोल्ड कर दूंगा, दैट इज माइनस 1 1 2 1। तो इसको मैं फोल्ड कर दिया। नाउ ये हो गया मेरा y ऑफ माइनस एल। ठीक है, और ये हो गया x ऑफ l। नाउ फाइंड आउट द कन्वोल्यूशन, y ऑफ l कन्वोल्यूशन माइनस एल। बहुत ही सिंपल कन्वोल्यूशन, आई थिंक हो जाएगा तुम लोगों से। ठीक है, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हो जाएगा ये सुन लो। क्योंकि इसको देखो, इसको कंपेयर करोगे कन्वोल्यूशन का x ऑफ n से, और इसको ये कंपेयर करोगे कन्वोल्यूशन का h ऑफ n से, फिर उसको आगे प्रोसीड करोगे, हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास आई एम एक्सपेक्टिंग द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, नाउ मैं तुम लोगों को सोल्यूशन भी दे दे रहा हूं, सोल्यूशन क्या आना चाहिए इसका शॉर्टकट मेथड भी दे दे रहा हूं। ठीक है, शॉर्टकट दैट इज मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, देखो, इसको हम h ऑफ x ऑफ n ले रहे थे और इसको h ऑफ n ले रहे थे, तो हम कन्वोल्यूशन का तुम्हारा शॉर्टकट मैट्रिक्स मेथड में क्या प्रोसेस चालू कर रहे थे। कन्वोल्यूशन में मेरा मैट्रिक्स मेथड में क्या था, सॉरी, कन्वोल्यूशन का मैट्रिक्स मेथड में क्या था, यहाँ पे x ऑफ n दिया गया था, बट यहाँ पे इसका उल्टा होगा, दैट इज y ऑफ माइनस एल, और यहाँ पे मैं x ऑफ l का वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, यही एक अंतर है, बाकी सब पूरा सेम है, जैसा तुमको दे दिया जाएगा वैसे ही तुमको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आई हैव टू पुट द वैल्यूज, दैट इज माइनस एल का वैल्यू क्या होगा। हाँ बोलो। 0 पॉइंट नहीं होता है क्या? 0
0 पॉइंट से शुरू किया गया। 0 पॉइंट तो मतलब सर एक लाख। देखो, यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे कहीं पे भी मेरा ओरिजिन मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, जब ओरिजिन मेंशन नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट शुरू जहां से हो रहा है उसी को हम 0th पोजीशन ले लेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन में मिलेगा, जहां पे देखोगे कन्वोल्यूशन में भी सेम थिंग रहेगा। एक्स ऑफ एन दे दिया जाएगा विदाउट डिनोटिंग द ओरिजिन, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मुझे जो मेन सिग्नल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी को मैं ओरिजिन ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिया नहीं गया है। तो बाय डिफॉल्ट आई कैन टेक द स्टार्टिंग नंबर एज द ओरिजिन नंबर, दैट इज एज द 0th वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, दैट्स वाई ये हम बाय डिफॉल्ट करके ही इसको क्या किए, इसको फोल्ड किए, कि यहाँ पे मेरा नहीं दिया गया था क्वेश्चन में, तो हम क्या किया, पहला जो नंबर है उसी को 0th पोजीशन ले लिए और उसी को पकड़ के इसको फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड जैसे करेंगे, -1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा ओरिजिन। नाउ मेरा y ऑफ l ये बन गया। नाउ सिंपल यू हैव टू पुट द y ऑफ l। अब मैं मैट्रिक्स मैं इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूं, ठीक है। नाउ क्या होगा, यहाँ पे इस पोर्शन को मैं उठा दे रहा हूं, y ऑफ माइनस एल, y ऑफ माइनस एल क्या होगा, -1 1 2 1 है, वही है, -1 1 2 1, हाँ। एंड x ऑफ l क्या है, 1 -1 1 2, दैट इज x ऑफ l। नाउ मल्टीप्लीकेशन करूंगा, क्या होगा, -1 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। नाउ यहाँ पे -1 +1, ये हो जाएगा 1 -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1। यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 2 1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। नाउ अगेन दैट यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, सिंपल कनेक्ट। तो मेरा आंसर क्या आ गया, एक्स वाई ऑफ एल इक्वल टू, यहाँ पे देखो -1 है, सो -1, यहाँ पे 1 + 1 2, -1 2, तो ये हो जाएगा 0, -2 0, सो ये हो जाएगा 2, 2 2 4 -1 3, एक मिनट, -2 4 -2, ये -2 हो जाएगा, सो 3, नेक्स्ट हो जाएगा 4 और एक 5, और ये हो जाएगा 2। सो दिस इज योर क्रॉस कोरिलेशन। सो सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन में क्या होगा, नाउ ऑटो कोरिलेशन में मेरा एक स्टेप आगे बढ़ेगा, कि मेरा ऑटो कोरिलेशन बी, ऑटो कोरिलेशन, कोरिलेशन से तुम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कोरिलेशन में मैट्रिक्स मेथड यूज करना, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन में मेरा क्या है, एक्स ऑफ एन दिया रहेगा, दैट इज एक्स ऑफ एन यहाँ पे है 1 -1 1 2, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द ऑटो कोरिलेशन, दैट मीन्स दिस इज एक्स के साथ एक्स, सो एक्स ऑफ एल एंड एक्स ऑफ माइनस एल, ठीक है। तो क्या होगा, ऑटो कोरिलेशन। तो यहाँ पे मेरा एक्स ऑफ एन है, तो एक्स ऑफ एन को एक्स ऑफ एल में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 1 -1 1 2, यहाँ पे चालू हो रहा है। सो वाई ऑफ एक्स ऑफ माइनस एल क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 1 -1 एंड 1, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, यूज मैट्रिक्स मेथड, बट फॉर नाउ मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग इस मेथड से मुझे कन्वोल्यूशन करके ये दो प्रॉब्लम मुझे
दिखाओ. दैट इज योर असाइनमेंट फॉर टुडेज assignment is find cross correlation of two finite sequences. ये assignment one, finite sequences x of n equal to 1 minus 1 1 comma 2 and y of n 1 2 1 -1. ये हो गया तुम्हारा पहला. दूसरा है ऑटो कोरिलेशन ऑफ सीक्वेंस x of n from 1. दैट मीन्स ये इसका ऑटो कोरिलेशन. आई होप नेक्स्ट क्लास में आई विल गेट दैट. नाउ नेक्स्ट इज, मैं अभी जा रहा हूं नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज कॉन्वोल्यूशन रिलेटेड. मेरा कॉन्वोल्यूशन हो गया, ठीक है. कॉन्वोल्यूशन हम लोग सॉल्व किए. कॉन्वोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, हाउ कैन यू सॉल्व द कॉन्वोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम. सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट डीकॉन्वोल्यूशन. कि तुम लोगों का मोबाइल में जैसे मैसेज आता है, सपोज मैं एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ फ्रॉम माय मोबाइल, ठीक है. ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल 1. आई हैव टू सेंड एन एसएमएस टू योर व्हाट्सएप ग्रुप, दैट इज व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है. तो मैं ये मैसेज जो सेंड कर रहा हूँ, जैसे ही मोबाइल में मैं टाइप कर रहा हूँ, वट एवर लेटर आई एम टाइपिंग, ठीक है, वो क्या हो रहा है, डिकोड हो रहा है, सॉरी एनकोड होके यहाँ से थ्रू एनालॉग सिग्नल यहाँ से क्रॉस कर रहा है, या थ्रू अ सिग्नल यहाँ से क्रॉस कर रहा है. तो तुम्हारा जो मोबाइल है जहाँ पे व्हाट्सएप स्क्रीन है, वहां पे ये क्या हो रहा है, डिकोड हो रहा है. दैट मीन्स अगेन माय सिग्नल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, दैट इज एनकोड. पहले होता है, सॉरी दैट इज डिकोड. पहले होता है एनकोड, उसके बाद वो डिकोड होता है. डिकोड होने का मतलब है मैं जो सिग्नल भेजा हूं हूबहू वही एक सिग्नल तुम्हारे मोबाइल में डिस्प्ले होगा. सपोज मैं दूसरा एक काम कर रहा हूं कि मेरा जो मोबाइल फोन है उसमें दूसरा रीजनल लैंग्वेज लाइक अरबिक, तमिल, तेलुगु ये कीपैड इंस्टॉल किया हूं, ठीक है. और वो इंस्टॉल करके मैं उसी लैंग्वेज में तुम लोगों को कुछ मैसेज भेज रहा हूं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में. नाउ सपोज योर सिस्टम इज नॉट सपोर्टिंग द अदर लैंग्वेज रादर देन इंग्लिश, ठीक है. तो तुम्हारे सिस्टम में वो मैसेज कैसे आएगा, लाइक अ बॉक्स, मतलब वो डिकोड नहीं होगा, ठीक है. सो ये होता है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग. लाइक जैसे तुम लोग बहुत सारा, तुम लोगों को मैसेज पहले जब 2G फोन था, देखोगे बहुत सारा मैसेज आता था जहां पे लिखता था सम कॉन्टेक्स्ट इज मिसिंग, और फिर वो स्क्वायर ब्लॉक देके कुछ मैसेज का डिस्प्ले देता. दैट मीन्स योर मोबाइल सिस्टम इज फेल टू डिकोड द मैसेज. सो डिकोड का मतलब क्या है, मेरा जो एनकोडेड सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल कैन बी एक्सट्रैक्टेड. सेम थिंग हैपेंस टू कॉन्वोल्यूशन. कॉन्वोल्यूशन क्या है, मेरा दो सिग्नल का कंबाइन कर रहा है, दैट इज मेरा इनपुट सिग्नल और इंपल्स रिस्पॉन्स को कंबाइन कर रहा है. सो इसी का उल्टा मैं कर सकता हूं कि मेरा एक कंबाइंड सिग्नल है मुझे मिला है, उस सिग्नल को मैं इनपुट सिग्नल और इंपल्स रिस्पॉन्स को अलग करूंगा, डिकम्पोजिशन और डी कॉम्बिनेशन. सो मैं उससे फायदा क्या होगा, मेरा जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो अलग हट जाएगा एंड आई विल गेट द इनपुट सिग्नल. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज डीकॉन्वोल्यूशन. सो देखो डीकॉन्वोल्यूशन में, पहले कॉन्वोल्यूशन में क्या था, एक्स ऑफ एन और यहाँ पे सिस्टम था, यहां से मेरा एच ऑफ एन जा रहा था. तो इसको कॉम्बाइन होके y ऑफ n हो रहा था, ठीक है. नाउ इन डीकॉन्वोल्यूशन मुझे क्या करना पड़ेगा, y ऑफ n मेरे पास है, मैं इसको फिर से एक सिस्टम में डालूंगा, ठीक है. ये सिस्टम क्या करेगा, मुझे x ऑफ n देगा एंड h ऑफ n अलग से देगा. सो दैट इज, देखो टोटल प्रोसेस, अगर मैं पहले पहले प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले लूं तो इस प्रोसेस को मैं बैकवर्ड डायरेक्शन ले सकता हूं, बोल सकता हूं. तो विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स प्रोसेस और
In technical term, this process is known as inverse process, and the process is done by a system, that is this system, system 2 and system 1. So system 2 is known as inverse system. Inverse system. So today now I will going to discuss you the inverse system. ठीक है? So now topic is inverse system. Now first of all we have to know about what do we mean by inverse system. ठीक है? So inverse system मिलने से मुझे क्या होगा, कैसे मैं लिख सकता हूं inverse system? Suppose एक सिस्टम है x of n, एक सिग्नल है x of n, ठीक है, x of n एक सिग्नल है जो ये सिस्टम पे जा रहा है, और इस सिस्टम से जाने के बाद मुझे h of n मिल रहा है, तो दिस सिग्नल इज y of n. सो आई कैन राइट y of n, ठीक है, एक मिनट, y of n पहले h of n में नहीं देता हूं मैं, सपोज पहले देता हूं a पैरामीटर इसमें ऐड हो. सो y of n इज a x of n, हम लिख सकते हैं, yes or no? I can write y of n equal to a x n. Can I write? Can I write? Yes, sir. Okay. So now नेक्स्ट सिस्टम को देखो, ये हो गया मेरा फॉरवर्ड सिस्टम, ठीक है. नाउ इसी y ऑफ n को मैं दूसरा एक सिस्टम में डाल रहा हूं और एक सिस्टम में डाल रहा हूं, जिसके चलते मुझे x ऑफ n मिलेगा. तो मुझे निकालना कौन सा है, a को बाहर निकालना है. तो सिंपल इक्वेशन से इफ y ऑफ n इक्वल टू a x n, देन I can write x of n equal to 1 by a. Can I write this? Sorry, 1 by a into yn. Can I write this? Yes, sir. Okay. So now suppose a के बदले मेरा h जा रहा है, इम्पल्स रेस्पॉन्स जा रहा है, ठीक है. तो इम्पल्स रेस्पॉन्स में अब इसका लुक कैसा होगा, दैट इज, एंड दिस इज x ऑफ n, इसको x ऑफ ना लिख के x डैश n लिखते हैं, ठीक है, x dash n for this, and from this equation also it can be provided. So for ideal system, x of n must equal to x dash n. अगर नहीं हुआ तो I can say some losses will be there, ठीक है. So now अगर मैं इम्पल्स दूंगा तो क्या होगा, x of n इधर है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स h of n है, ठीक है, एंड देन वी विल गेट yn. सो yn, एंड नाउ फिर से एक सिस्टम दूंगा तो वहां पे 1 by a ऐड हो रहा है, तो इस सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा h इनवर्स n. सो आई विल गेट, सपोज दिस इज ओमेगा n. दूसरा एक नोटेशन, ठीक है, फॉर परफेक्ट आइडियल सिस्टम, आइडियल सिस्टम xn must be equal to ओमेगा n, ठीक है. सो नाउ अगर मैं इस पोर्शन को सिस्टम के फॉर्मूला में पुट करूं तो क्या दिखेगा, मेरा y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन ऑफ h ऑफ n, ये दिखेगा, ठीक है. सो नाउ और यहां पे अगर मैं देखूंगा, इस पोर्शन पे अगर मैं देखूंगा तो ओमेगा n का वैल्यू क्या रहेगा, ये हो गया इक्वेशन 1. इस पोर्शन में अगर देखूंगा ओमेगा n का वैल्यू होगा, ओमेगा n इस सिस्टम के लिए मेरा इनपुट क्या है, y ऑफ n. सो y ऑफ n कॉन्वोल्यूशन विथ h ऑफ h इनवर्स n, ये हो गया. एम आई राइट? Yes, sir. ओके. नाउ देखो, नाउ अब मैं
ओमेगा एन इक्वल टू वाई ऑफ एन। सो वाई ऑफ एन के जगह में मैं ये पुट करूंगा बिकॉज वाई ऑफ एन इक्वल टू नथिंग बट दिस। सो वाई ऑफ एन के जगह में मैं पुट करूंगा एक्स ऑफ एन, एच ऑफ एन माइनस एन, सॉरी एच और एच टू द पावर माइनस एन। सो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स ऑफ एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी जो भी ले लो। तो क्या होगा, ये क्या है इसी सिस्टम का, ये दिस इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ दिस सिस्टम। सो इसका जो भी कन्वोल्यूशन होगा दैट विल बिकम्स वन। ठीक है। सो ओमेगा एन इक्वल टू एक्स ऑफ एन for a perfect signal combination. So this is the inverse system जहां पे तुम्हारा inverse system का output is always equal to the input of the system, not inverse system. Okay, output of the, तो इसका concept, इसका जो main statement है वो क्या होगा, what will be the main statement? The output of inverse system is equal to the input of the system, not inverse system, हाँ, input of the system. So now ये तो मेरा दिस पार्ट हुआ। नाउ मैं अब इसको कॉन्वोल्यूशन में यूज करूंगा। कॉन्वोल्यूशन इज नथिंग बट द दिस प्रोसेस, ये कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस रहा। ठीक है, और ये कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस रहा तो उसका उल्टा प्रोसेस क्या रहेगा, डी कॉन्वोल्यूशन। डी कॉन्वोल्यूशन दैट इज डी कॉन्वोल्यूशन। सो डी कॉन्वोल्यूशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला पता है, दैट इज वाई ऑफ एन इक्वल टू k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। ये हो गया मेरा कॉन्वोल्यूशन का जनरल फॉर्मूला। नाउ इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज x ऑफ k में निकालना पड़ेगा। सो आई हैव टू फाइंड द इनपुट। In convolution we have to find the output for a given input. Now we have to find the input from a given output. ठीक है, सो इसका सिर्फ फिर सिंपली उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। दैट मीन्स सपोज y of n is given and h of n is given. So we have to find out x of n. ठीक है, सो मैं प्रॉब्लम देके तुम लोगों को समझा रहा हूं कैसे ये निकलेगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम को ध्यान से देखो क्योंकि ये जो प्रोसेस है मैं प्रॉब्लम देकर समझाऊंगा तो इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो प्रॉब्लम सपोज मुझे एक सिग्नल दे दिया गया है, आउटपुट सिग्नल दे दिया गया है y ऑफ n इक्वल टू 1 5 10 11 8 4 1। okay, having impulse response 1 2 1। so we have to find out what is the x of n। ठीक है, so now steps solution। so now solution। so steps लाइक कन्वोल्यूशन का ही उल्टा स्टेप यहाँ पे फॉलो होगा।
ठीक है, पहला स्टेप क्या है, जो गिवन डेटा है उसको लिख लो, y ऑफ n इक्वल टू 1 5 10 11 8 4 1। ठीक है, x ऑफ n तो दिया नहीं गया है, h ऑफ n को लिख लो 1 2 1। सेकेंड स्टेप क्या है, आउटपुट में, ठीक है, मतलब मेरा जो इनपुट मेरा निकलेगा दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें मेरा कितना सैंपल रहेगा, ठीक है, हाउ मेनी सैंपल्स विल बी देयर, ठीक है, दैट मीन्स मेरा अगर सैंपल्स, फॉर्मूला क्या है, सपोज y ऑफ n में कितना सैंपल है प्लस इम्पल्स रेस्पॉन्स में कितना सैंपल है -1। सो सपोज इन y ऑफ n कितना सैंपल है, टेल मी हाउ मेनी सैंपल्स आर इन y ऑफ n, हाउ मेनी सैंपल्स ऑफ देयर इन are there in y of n? 7, sir. 7, that is 1 2 3 4 5 6 7, good। and h of n में 3. 3, good। so 7 सैंपल्स है y ऑफ n में, y ऑफ n का सैंपल से n1 लेते हैं दैट इज 7, एंड h ऑफ n में सैंपल से n2 दैट इज 3। so now हाउ मेनी सैंपल्स विल बी इन x ऑफ n, ठीक है, तो हम देखेंगे x ऑफ n में कितना सैंपल्स है। सो बेसिकली इसका बैक कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है n1 माइनस प्लस n2 -1 इक्वल टू आउटपुट सैंपल दैट इज m। सो आउटपुट में सैंपल मेरा पता है 7 -1, इनपुट इम्पल्स में मेरा सैंपल पता है 3, ठीक है, मुझे निकालना है n1 में, तो उसी को हम n1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। यहाँ पे मेरा क्या है, सपोज आउटपुट x ऑफ n में नंबर ऑफ सैंपल है n, सो n प्लस n2 -1 इक्वल टू n अगर होगा तो मेरा, सॉरी, n1 इक्वल टू n1 अगर होगा तो मेरा n का वैल्यू होगा n1 माइनस n2 प्लस 1, ये याद रखना, ठीक है, बाकी कुछ याद मत रखो, बुक में ये दिया है बैक कैलकुलेशन, इसको भूल जाओ। तो देखो सपोज x ऑफ n का सैंपल है n, ठीक है, वो हमको निकालना है कितना सैंपल होगा। सो जस्ट गिव द फॉर्मूला दैट इज n1 माइनस n2 प्लस 1 इक्वल टू n। सो n1 का वैल्यू कितना है 7 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू n। सो n का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 5। सो आई कैन राइट x ऑफ n हैज 5 सैंपल्स, ठीक है, ये याद रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन और नेक्स्ट कैलकुलेशन। सो नेक्स्ट कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैलकुलेशन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूंगा। कैलकुलेशन स्टेप 3 है ना, हाँ स्टेप 3। तो स्टेप 3 में मेरा क्या आएगा, दैट इज, मुझे पता है y ऑफ n इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k, ये है इनफाइनाइट सीरीज। बट मेरा जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन जो दिया गया है मेरा, ये फाइनाइट है, फाइनाइट सीरीज है, एग्री और नॉट? तुम लोग एग्री कर रहे हो या नहीं?
Yes, sir. ओके, सो नाउ फाइनाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरा इनफाइनाइट बाउंडेशन है, इसको फाइनाइट बाउंडेशन में लाऊंगा मैं। फॉर y ऑफ n फॉर फाइनाइट सीरीज। सो फाइनाइट सीरीज के लिए मैं क्या करूंगा, k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके n तक लेके जाऊंगा, x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। ठीक है, नाउ मुझे क्या निकालना है, x ऑफ k निकालना है। ठीक है, x ऑफ k निकालना है। सो नाउ पहला क्या होगा, n इक्वल टू 0। अब देखते हैं n इक्वल टू 0 में क्या होगा। ठीक है, तो n इक्वल टू 0 में मेरा x ऑफ n निकालना है, तो ये बन जाएगा x ऑफ 0। सो मुझे x ऑफ 0 निकालना है यहां से। ठीक है, वेरी वाइटल थिंग, यहां से x ऑफ 0 निकालना है। तो x ऑफ 0 यहां से कब निकलेगा, जब मेरा यहाँ पे n का वैल्यू 0 रहेगा, सॉरी k का वैल्यू 0 रहेगा। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट वन इज, फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू डू दिस n माइनस k, सॉरी n minus k. So you have to do this, that is put the value of k equal to 0 इस सिग्नल में। For this I have to put the value of this signal equal to 0, that is y of n equal to k का वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं। तो k का वैल्यू जैसे ही 0 पुट कर रहा हूं, k 0 वाला टर्म यहां से निकल जाएगा। सो ये हो जाएगा x ऑफ 0 h ऑफ n, n माइनस 0 दैट इज 0, प्लस 0 के बाद जितना भी टर्म रहेगा वो एज इट इज रह जाएगा। सो k अब काउंट होगा 1 से, क्योंकि k इक्वल टू 0 का वैल्यू चला गया। 1 से कितना काउंट होगा, एक स्टेप कम काउंट होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। सपोज Yes, sir. मैं फर्स्ट 10 सीरीज का समेशन मांग रहा हूं। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, n इक्वल टू 1 टू 10 हो जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ x। ठीक है, x इक्वल टू 10 नंबर का समेशन है x n। ठीक है, तो मैं पहला नंबर बोल दिया हूं, शुरू हो रहा है 1 से, तो हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस, अब n कहां तक जाएगा, 0 2 टू 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो ये हो जाएगा। सो नाउ यहां पे भी 10 माइनस 1 आ जाएगा, और ये एक टर्म यहां से निकल चुका है, तो यहां से निकल चुका है। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, मैं तो बोल दिया, तुम लोग यस सर बोल दियो। सही बोल रहा हूं, नो ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये 0 से होगा। मैं दोनों साइड में एक एक स्टेप घटा रहा हूं, तो 2 सिग्नल घट जाएगा, तो ये 0 से होगा, 0 टू n माइनस 1। अब ठीक है, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ सैंपल है ना, कितना सैंपल जाएगा, उस सैंपल से मैंने एक सैंपल हटा दिया, तो अब ये नंबर ऑफ सैंपल कितना रहेगा, 0 टू n माइनस 1। अब सही है, यस और नो, अरे हाँ या ना तो बोलो, हाँ या ना। देखो सर एक्चुअली ये टर्म ना क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखो मैं बोल रहा सो हूँ, फाइनाइट सीरीज सर, हाँ बोलो। सर बीच में मतलब आपको आवाज ही चला गया था, फाइनाइट सीरीज से फिर से रिपीट कीजिए ना। अच्छा ठीक है, फाइनाइट सीरीज में मेरा क्या होगा, मैं सीरीज को फाइनाइट कर रहा हूं, तो मेरा फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट मतलब दोनों साइड में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आ रहा है। बट फाइनाइट सीरीज में जब भी लूंगा, मैं 0 से अप टू एक सर्टेन लिमिट तक लूंगा, तो वो 0 से अप टू सर्टेन लिमिट, सपोज n तक ले रहा हूं, बिकॉज y ऑफ n हमको निकालना है, तो अप टू n तक ले रहा हूं, दैट इज इनफाइनाइट। और दूसरा अगर देखोगे, तो दोनों सीक्वेंस ही देखो, जो मैं सीक्वेंस दे हूं यहाँ पे मैं मेजर नहीं किया हूं कौन सा तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये 1 से ही स्टार्ट होगा, तो ये 0 से ही स्टार्ट होगा, तो ये 0 टू अप टू n। सो यहां तक समझ में आया फाइनाइट सीरीज। नाउ
मैं अब देखूंगा फाइनाइट सीरीज में होगा तो n इक्वल टू 0 में उसका वैल्यू क्या होगा। n इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा तो मेरा आउटपुट वैल्यू हो जाएगा x ऑफ n मुझे निकालना है, तो n इक्वल टू 0 मतलब x ऑफ 0 मुझे निकालना है। ठीक है, तो x ऑफ 0 मुझे निकालना है, मैं देखूंगा x ऑफ 0 कितना निकल रहा है, दैट इज सैंपल नंबर 1। तो पहले निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इसी को लिखूंगा और k के जगह 0 पुट करूंगा। तो यहाँ पे x ऑफ 0 h ऑफ n एक टर्म रहा, एक टर्म वहां से निकाल दूंगा। तो वहां से अगर एक टर्म निकाल, मैं अगर बोलूंगा कि 10 सैंपल लो, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0th पोजीशन, तो तुम्हारा क्या होगा, समेशन 0 to 9 होगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं 10 सैंपल में से एक सैंपल का वैल्यू है और फर्स्ट सैंपल का वैल्यू है तुम्हारा 3, तो हाउ मेनी सैंपल्स आर देयर, 3 तो वैल्यू मेंशन हो ही गया, प्लस तुम फिर निकालोगे 0 to 8, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सैंपल्स, एंड एक सैंपल मैंने पहले ही बता दिया तो वो हो गया 10 सैंपल, तो टोटल 10 सैंपल। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे पुट किया हूँ कि मैं तो 0 k इक्वल टू x ऑफ 0 h ऑफ n, ये एक वैल्यू मैंने बाहर निकाल दिया n इक्वल टू 0 लेके। नाउ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कितना सैंपल बाकी रहा, k का वैल्यू तो 1 से शुरू होना चाहिए ना। हाँ बोलो। तो k का वैल्यू 1 से शुरू होना चाहिए। तुम k का वैल्यू 1 से n तक लिख सकते हो या 0 से n-2 तक लिख सकते हो। ठीक है, 1 तक सर, n-1। हाँ, n-1 लिख सकते हो या k का वैल्यू 1 से, दोनों में से कहीं एक पे माइनस करो। तो ट्रेडिशनल वे, हम लोग ट्रेडिशनल वे फॉलो करेंगे, 0 to n-1 नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, k इज नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, तो 0 to n-1 लेके ही चलेंगे हम लोग। ठीक है, ताकि तुमको बाद में कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट इज, अब देखो, नेक्स्ट इज मेरा इस पोर्शन के बाद मेरा ये लाइन आएगा, y of n इक्वल टू x of 0 h of n प्लस k इक्वल टू 0 n-1 x of k h of n-k। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और तुम्हारा इक्वेशन अरेंज करो, तो x ऑफ 0 का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, दैट इज y ऑफ n माइनस k इक्वल टू 0 to n-1 x of k h of n-k होल डिवाइडेड बाय h of n। जस्ट रीअरेंज करो, x ऑफ 0 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ और y ऑफ n को राइट हैंड साइड लेके जाओ। ठीक है, तो सेम आएगा दैट वैल्यू। सो नाउ मेरे पास क्या है, x ऑफ 0, आई एम गेटिंग x ऑफ 0। ठीक है, नाउ मेरे पास x ऑफ 0 आ चुका है। ठीक है, नाउ फॉर n इक्वल टू 0, अब मैं कैलकुलेट करूंगा। सो x ऑफ n मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करूंगा बाकी कौन सा सैंपल मैं ले पाऊं। ठीक है, सो दैट इज, नाउ देखो, इसका एक मैं अब जनरल फॉर्मूला यूज करूंगा। ये तो हो गया x ऑफ 0 n इक्वल टू 0 पे। अब मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला यूज करूंगा ताकि मुझे x ऑफ n मिले। ठीक है, सो मैं एक जनरल फॉर्मूला यूज करूंगा, y ऑफ n इक्वल टू समेशन ऑफ y ऑफ n इक्वल टू, यही इक्वेशन में दोबारा लिखूंगा, k इक्वल टू इनफाइनाइट, k इक्वल टू 0 to n x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। सो नाउ मैं एक जनरल फॉर्मूला यूज करूंगा, ये x ऑफ 0 आ गया, सिमिलरली आई विल फाइंड आउट x ऑफ 1, आई विल फाइंड आउट x ऑफ 2, बट मुझे एक जनरलाइज फॉर्मूला चाहिए ताकि मेरा पुट द फॉर्मूला एंड आई विल गेट द आंसर। ठीक है, ये मेरा मेन मोटो है। सो नाउ y ऑफ n, तो मैं क्या पुट करूंगा, 0 1 2 3, आई विल फाइंड x ऑफ n। सो यहाँ पे देखो,
k का वैल्यू अगर हम फॉर k इक्वल टू n अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, y ऑफ n इक्वल टू k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x ऑफ k h ऑफ n माइनस k प्लस k का वैल्यू n पुट करो x ऑफ n इंटू h ऑफ 0, ये आ जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Okay, now rearrange them. So x of n will become y of n minus summation k equal to 0 to n minus 1 x of k h of n minus k whole divided by your h of 0। तो ये हो गया मेरा जनरलाइज फॉर्मूला, and you have to remember this formula for deconvolution, that is formula to find deconvolution। now अब मैं धड़ाधड़ put the formula and I will get the answer। so now x of how many samples are there, that is 5 samples starting from n equal to 0 for n equal to 0। now x of 0 equal to y of 0 माइनस, ठीक है, y of 0 दैट इज k का वैल्यू यहाँ पे 0 टू n माइनस है, सो यहाँ पे n का वैल्यू 0 है तो 0 टू माइनस 1, ठीक है, 0 टू माइनस 1 अगर होगा 0 टू माइनस 1 में k का कोई वैल्यू है ही नहीं उधर, ठीक है। ये अगर इक्वेशन को देखें तो -1 टू 0 दैट इज 0 टू -1 मतलब -1 टू 0, सो -1 टू 0 देखो यहाँ पे h का कोई वैल्यू है ही नहीं, h का बोलो या x का बोलो कोई वैल्यू आएगा ही नहीं, तो ये एंटायर टर्म 0 हो जाएगा एंड दिस विल h ऑफ 0। सो y ऑफ 0 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है एंड h ऑफ 0 का वैल्यू कितना है 1 है, सो 1 by 1 इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट इज next process, n equal to for n equal to 1, so x of 1 equal to y of 1 minus k equal to 0 to 1 minus 1 that is 0, ठीक है। तो x of 0 x of k h of 1 minus k h of 0, 0 to 0 के मतलब क्या है k equal to 0, so h of x of 0 into h of 0 that is y of 1 minus your k 0 to 0, एक वैल्यू अगर 0 to 0 लाई करता है दैट मीन्स वो वैल्यू 0 में ही लाई करेगा, तो x of 0 k का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड h का वैल्यू 1 minus 0 that is 1 by h of 0। so y of 1 का वैल्यू कितना है 1 माइनस सॉरी y of 1 का वैल्यू कितना है दैट इज 5 एंड h of 1 का वैल्यू है 2, ठीक है। सो y of 1 का वैल्यू है 5 माइनस x of 0, ठीक है, x of 0 का वैल्यू कितना है यहां से मेरा 1 आया मल्टीप्लाइड विथ h of 1 का वैल्यू कितना है फ्रॉम द इक्वेशन h of 1 का वैल्यू 2 है, सो 2 बाई h of 0 का वैल्यू 1 है, सो 2 5 minus 2 equal to 3। नेक्स्ट इज n equal to 2 for n equal to 2, x of 2 का वैल्यू क्या आएगा y of 2 minus k equal to 0 2 minus 1 that is n minus 1, 2 minus 1 that means 1, so x of k h of 1 that is n का वैल्यू 2 है 2 minus k by h of 0, so y of 2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है
10 माइनस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 में x ऑफ 0 h ऑफ 2 होगा, और प्लस है तो ये बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 0 एंड 1, सो x ऑफ 1 h ऑफ 1, नाउ h ऑफ 0. Similarly, you will find the answer. Similarly, I will find the answer for the last sample, and this sample you will find for n equal to 5. 5 sample na, 0, 1, 2, 3, 4, n equal to 4, n equal to 4. So x of 4 equal to y of 4 minus k equal to 0 to 4, n minus 1, n का वैल्यू 4 है, 4 minus 1 that is 3, x of k h of 4, h of 4 minus k by h of 0. तो देखो y of 4 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 8 है, ठीक है, 8 माइनस, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट मार देता हूँ, 0, 1, 2, 3, बिकॉज k का वैल्यू 0 से 3 तो आएगा, मतलब k का वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करेगा, 1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है. तो x ऑफ 0 h ऑफ 4, 4 माइनस 0 प्लस x ऑफ 1 h ऑफ 4 माइनस 1, 3 प्लस x ऑफ 2 h ऑफ 4 माइनस 2 that is 2 प्लस h of x of 3 h of 4 minus 3 that is 1 by h of 0 का वैल्यू 1 है. So now you will get the answer, and this x of 3 is redirected from the previous step. So in this calculation you will see that each and every steps is required for the in the next step. So whenever you are find n equal to 2, that means n equal to 1 में तुम्हारा x का वैल्यू कितना था वो मुझे लगेगा. Whenever you find x n equal to 3, n equal to 2 में मेरा x का वैल्यू कितना था वो लगेगा. So बी केयरफुल कि जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा प्रीवियस स्टेप जो है वो सही हो, क्योंकि प्रीवियस स्टेप अगर गलत हो गया बाय चांस तो तुम्हारा क्या होगा, जो मेन सैंपल है पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग होते होते आ जाएगा, ठीक है. सो दैट इज वेरी मच केयरफुल, you have to very much careful about these things. Okay, next is दूसरा एक चीज हम लोग कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में, ठीक है. इन मैट्रिक्स फॉर्मेट इसका भी एक शॉर्टकट है, ठीक है, हर एक चीज का एक शॉर्टकट, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्मेट में मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे यूज करो, क्योंकि मैट्रिक्स शॉर्टकट दिखने में लग रहा है लेकिन इसको सॉल्व करने में तुम लोगों का टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा. एक मिनट, तो देखो मेरा यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, y ऑफ n मेरा दिया हुआ है एक सीक्वेंस, h ऑफ n मेरा दिया हुआ है दूसरा सीक्वेंस, मुझे निकालना क्या है, x ऑफ n निकालना है. तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा y मैट्रिक्स, ये हो जाएगा मेरा h मैट्रिक्स, ये हो जाएगा मेरा x मैट्रिक्स. सो नाउ अगर इसी प्रॉब्लम को मैं मैट्रिक्स में लिखूं तो कैसा होगा, दैट इज y of n is given, y of n is given, that is 1, 5, 10, 11, 8, 4, 1, ठीक है, 1, and h of n is given, that is 1, 2, 1. सो ना इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में देखूंगा.
सो मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैट्रिक्स फॉर्मेट में ये हो जाएगा y का पोर्शन, दैट इज y का जितना भी वैल्यू है उसको कॉलम वाइज लिख दूंगा, 1 5 10 11 8 4 1। ठीक है, ये लिख दिया y। नाउ h को लिखूंगा, ये भी नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द y मैट्रिक्स। तो इसको कैसे लिखूंगा, इसको ध्यान से देखो, h ऑफ 0। ठीक है, यहाँ पे कितना तुम्हारा रो एंड कॉलम है, ठीक है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स में लिखो। दैट मीन्स अगर मैं इसको लिखूंगा 1, सो इसको 1 2। नाउ इसको उल्टा लिखते हैं, h ऑफ 0, यहाँ पे h ऑफ 0, पहले तुम लोग को फॉर्मेट लिख देते हैं, h ऑफ 0। नाउ नेक्स्ट इज h ऑफ 0 आ गया, तो h ऑफ 0 डायगोनली शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा h ऑफ 1। फिर यहाँ पे डायगोनली शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज h ऑफ 1 h ऑफ 0, सो यहाँ पे आ जाएगा h ऑफ 2। ठीक है, इसी तरह तुम लोगों का कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, अप टू अ फिक्स लेवल। ठीक है, सो नाउ ये जब तक यहाँ पे ना आ जाए वो चलता रहेगा कंटिन्यूअस। ठीक है, तो 0 नंबर ऑफ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। दैट मीन्स 0 0 0 0 0 3 1 2 3 4, फिर 0 आ जाएगा, h ऑफ 2 इधर हो जाएगा, h ऑफ 1 इधर हो जाएगा, h ऑफ 0 इधर हो जाएगा, 1 2 3, फिर यहाँ पे 0 0, h ऑफ 2 h ऑफ 1 h ऑफ 0, 0 0 0, h ऑफ 2 h ऑफ 1 h ऑफ 0, 0 आ जाएगा इधर, फिर 1 2 3 4 हो जाएगा, h ऑफ 2 h ऑफ 1 एंड h ऑफ 0। यहाँ तक जैसे ही आ गया तुम इसको स्टॉप कर दो। नेक्स्ट इज x, तो यहाँ पे x ऑफ 0 x ऑफ 1 x ऑफ 2 अप टू डॉट 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 जितना तुम्हारा x ऑफ 7। ठीक है, कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, x ऑफ 6। So by this equation you can do the matrix. So यहाँ पे आ जाएगा H matrix, यहाँ पे X matrix. So X matrix is nothing but the H inverse Y. So I think मैं इसको शॉर्टकट कह रहा हूँ लेकिन ये शॉर्टकट है नहीं। ठीक है, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मेथड है। ठीक है, तो डोंट ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, बिकॉज उससे जो तुम्हारा कंफ्यूजन होगा एंड नंबर ऑफ कैलकुलेशन इज मच मोर हार्डर देन इन योर नॉर्मल traditional method. So I advise to maintain the traditional way for your deconvolution process. समझ में आया? Yes or no? Yes or Yes, no? sir. Okay. So next is, अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास, अभी ये टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, न्यूमेरिकल टॉपिक ज्यादा, एक दिन में ज्यादा टॉपिक में ये नहीं कराऊंगा वरना तुम लोग हौच-पौच हो जाओगे। सो इन नेक्स्ट क्लास मैं तुम लोगों को एक काम देता हूँ। पहला 2 असाइनमेंट तो है ही, उसके साथ तुम लोगों का एक काम है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लस जेड ट्रांसफॉर्म।
आई होप ये लास्ट सेमेस्टर में पढ़े थे ना जेड ट्रांसफॉर्म, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो जेड ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए मैं डिटेल नहीं पढ़ने बोलूंगा, मैं बोलूंगा तुम लोगों को जो मैथ का पेपर था ना वहां से तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्म था, तो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म देख के आना, एंड जेड ट्रांसफॉर्म भी देख के आना। नेक्स्ट क्लास से मैं जेड ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाऊंगा, फिर मैं फिल्टर और तुम्हारा रेस्पॉन्स में सिग्नल का रेस्पॉन्स में डिटेल पार्ट में एंट्री लूंगा। ठीक है, सो अप टू दिस एनी डाउट्स फ्रॉम योर एंड? Any doubt from your end, so that I can conclude the class? Any doubt from your end? Any doubt? No, No, sir. sir. Okay. So thank you all. I'm going to end the session. Thank you.